عمران خان میں یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی اور آٹا نایاب، یوٹیلیٹی سٹورز سے شہری خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور۔ شہری کا کہنا ہے کہ کسی بھی یوٹیلیٹی سٹور سے چینی نہیں مل رہی، حکومت صرف برائے نام ریلیف دے رہی ہے۔ عامر بھٹی شہریوں کی مشکلات کے حوالے سے آگاہ کریں گے ہمیں، عامر بتائیے گا۔ میں ضلع بھر کے یوٹیلیٹی سٹور پہ اس وقت ایک ماہ کا عرصہ گزر گیا ہے اور چینی یہاں پہ دستیاب نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آٹا ہوتا ہے اس کا بھی محدود سٹاک یہاں پہ لایا جاتا ہے، 2 دن سے آٹا بھی غائب ہے، جس کے بعد جو شہری یہاں پہ آتے ہیں کہ یہاں پہ سستی اور وافر مقدار میں چینی اور آٹا خرید سکیں گے، تو ان کا یہاں سے چینی اور آٹا خریدنا خواب بھی بن کر رہ گیا کہ وہ اوپن مارکیٹ میں جانے پر مجبور ہو گیا ہے۔ ایک بزرگ شہری ہمارے سے موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ بابا جی کیا کہنا چاہیں گے؟ یوٹیلیٹی سٹور پہ آئے ہیں، چینی نہیں ہے 1 مہینے سے اور آٹا جو ہے وہ بھی نہیں ہے۔ جی یہ میں کہنا چاہتا ہوں، حکومت سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ غریب عوام کو ریلیف دیں۔ میں بوڑھا آدمی ہوں، 1 ماہ سے یہاں سے یوٹیلیٹی سٹور پر چکر لگا رہا ہوں، نہ چینی ملتی ہے نہ آٹا ملتا ہے۔ پھر ایسے سٹوروں کا فائدہ کیا ہے کہ ہم چکر لگا کے تھک جاتے ہیں لیکن کچھ ملتا نہیں ہے۔ برائے مہربانی یہاں پہ جو ہے نا آٹا اور چینی جو ہے نا مہیا کی جائے تاکہ غریب لوگوں کو ریلیف میسر ہو سکے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ حکومت کہتے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹور پہ ہم ریلیف پیکیجز دے رہے ہیں، تو آپ نے سابقہ حکومتوں کے دور بھی دیکھے ہیں، اس حکومت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی فرق تو ہے تھوڑا، عمران صاحب اچھے جا رہے ہیں لیکن مافیا جو ہے نا ان پہ کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہے۔ آج میں شہر گیا ہوں تو کل مسٹریٹ نے جرمانے کیے ہیں لوگوں کو، آج پورے شہر میں ہڑتال ہے۔ تو کیا کریں؟ مطلب ہے کہ حکومت کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، آخر غریب عوام ہے، ہم پنشن پہ گزارا کر رہے ہیں، کوئی ملازمت نہیں ہے ہماری، تو بڑی مجبوری ہے۔ مطالبہ کیا کریں گے عمران خان صاحب سے؟ مطالبہ یہی کریں گے کہ عوام کو ریلیف دیں گے۔ بالکل عوام کو جو ہے ریلیف فراہم کیا جائے کیونکہ عوام اس وقت مشکلات میں ہے۔ شہریوں نے حکومت سے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی اور آٹے کی فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ عامر بھٹی بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی رخ کریں گے بہاولپور کا، جہاں شہریوں کے لیے سستا آٹا، چینی اور گھی خواب بن گیا ہے۔ بہاولپور کے یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی آٹا، چینی اور گھی غائب ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں محمد امین سے۔ امین بتائیے گا۔ دیگر شہروں کی طرح بہاولپور میں بھی آٹا، چینی اور گھی جو ہے وہ یوٹیلیٹی سٹور پر جو ہے وہ نایاب ہو چکا ہے۔ جو شہری ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مختلف جو شہروں سے، جو مختلف جگہوں سے شہری یوٹیلیٹی سٹور پر آتے ہیں چینی لینے کے لیے یا دیگر اشیاء خوردنوش، ان کو نہیں مل رہی۔ تقریباً 1 ماہ اور 10 دن ہو چکے ہیں بہاولپور کے جو یوٹیلیٹی سٹور ہے وہاں پر چینی دستیاب نہیں، گھی بھی دستیاب نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آٹا بھی نایاب ہو چکا ہے۔ تو شدید مشکلات ہیں شہریوں کو۔ یہاں پر شہری کچھ موجود ہیں یوٹیلیٹی سٹور میں، ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا آپ بتائیے گا کتنی مشکلات ہیں یہاں پر آٹا، چینی، گھی جب یوٹیلیٹی سٹور پر نہیں دیا جا رہا؟ یہ مشکلات تو ہیں، آف کورس بہت مشکلات ہیں، تو حکومت کو چاہیے کہ ہمیں دیا جائے یہاں پہ سب کچھ۔ جب ہر چیز ہے تو یہ چیز ہمیں لینے کے لیے کہیں اور خوار ہونا پڑتا ہے، ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے چیزیں سستی بھی ہوتی ہیں، اس لیے شہری جو ہے زیادہ یوٹیلیٹی سٹور کو رخ کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا یہاں پر آٹا، چینی، گھی شارٹ ہے یوٹیلیٹی سٹوروں پر، تو باہر مہنگائی زیادہ ہے، یہاں پر چیزیں نہیں ہیں، اس پر کیا کہیں گے؟ جی ہم حکومت سے گزارش کریں گے جی بھی یہاں پر بھی میسر کریں، ہمیں سہولت مل جائے۔ مارکیٹ میں ہر چیز مہنگی مل رہی ہے، ہمیں بہت مشکلات پڑ رہی ہیں، جیسا کہ ہمیں ابھی چینی نہیں مل رہی، چینی کی دشواری پیدا ہو رہی ہے، باہر مارکیٹ میں منہ مانگے داموں میں بک رہی ہے، ہمیں نہیں مل رہی۔ ادھر ہی ریکویسٹ ہے کہ بھی یوٹیلیٹی سٹور پر ہمیں میسر کیا جائے۔ باہر جو ہے عام مارکیٹ میں ان کا بہاولپور کے یوٹیلیٹی سٹورز میں بھی آٹا اور چینی نایاب ہو گیا ہے۔ محمد امین بہت شکریہ آپ کا۔ رخ کریں گے ڈیرہ غازی خان کا، جہاں سبزیوں کی قیمتوں میں کمی نہ آ سکی۔ مارکیٹ میں ٹماٹر، سبز مرچ 120 روپے کلو کے حساب سے فروخت ہونے لگے، ادرک 120 روپے پاؤ، جبکہ لہسن 160 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا ہے۔ مہنگائی کے حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں عاشر اشفاق سے۔ عاشر بتائے گا۔ مہنگائی نے عام شہریوں کی چیخیں نکلوا کر رکھ دی ہیں۔ سبزی منڈی میں موجود ہیں، سبزیوں کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ مارکیٹ میں ٹماٹر 120 روپے کلو، سبز مرچ کی بات کریں تو سبز مرچ 100 روپے کلو کے حساب سے، جبکہ اگر ہم آلو کی بات کرتے ہیں تو آلو مارکیٹ میں 100 روپے کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے۔ مہنگائی پر عام شہری کا کیا کہنا ہے، شہریوں سے ہی جان لیتے ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی بتائیے گا، ٹماٹر لیے ہوئے ہیں، مرچیں لی ہوئی ہیں، کیا ریٹ سے آپ سے ملی ہیں، کیا کہنا چاہیے؟ سر یہ تو 120 روپے کلو ملی ہیں، ٹماٹر اور مرچیں دونوں 120 چل رہا ہے۔ تو آپ کے سامنے ہے ابھی جو حالات ہیں مہنگائی کے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ابھی تو جی آپ بتائیے گا، کیا کہنا چاہیں گے؟
कुछ भी नहीं कहना चाहते। इतनी महंगाई इन्होंने कर दी है, ठीक है ना। सिर्फ नारे मारते थे सिर्फ, बस तब्दीली तब्दीली, ये होती है तब्दीली। हर चीज का जो उन्होंने हाई रेट कर दिया इन्होंने, ठीक है ना। गरीब क्या करेगा, 500 रुपए कमाने वाला क्या करेगा। बिल्कुल, गरीब क्या करे, लोगों की परेशानियां बढ़ चुकी हैं। चाचा तू दस क्या गिनना है, एखनी किवें है रेट? चाचा रेट बहुत महंगा है, गरीब आदमी जीवन को औखा है। इन दौर को दाना महंगा है, गरीब आदमी जरा 500 दिमाग कमाते हो कैरिजा खरीद करे। एक खान साहब की हुकूमत देखिए। आप क्या कहना चाहेंगे भाई, क्या सूरत हाल है मंडी में सब्जियों की? यार बहुत महंगाई है, फिलहाल तो यही चल रहा है बस। बिल्कुल, शहरी महंगाई जिला पर गाजी खान में परेशान। सब्जियों की कीमतों में इजाफा जारी है। आशिर अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। रोही की मुसलसल काविशें रंग ले आए। डीजी खान बैनुल सूबाई कोयटा रोड की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। रोही ने कोयटा रोड की खस्ता हाली की खबर नशर की थी। रोड का मरम्मती काम शुरू होने पर रोही के मशकूर हैं ट्रांसपोर्टर्स का ऐसा कहना है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अली मूसा रजा से, जल्दी बताएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डेरा गाजी खान के कबायली इलाके गिरदो के मकाम पर, जहाँ पर राखी गाज से गिरदो तक का जो कबायली रोड था बैनुल सूबाई शाहराह थी, बलूचिस्तान और पंजाब को मिलाने वाली, यहाँ पर अरसा दराज से ट्रैफिक का मसला था। रोड पर बड़े बड़े गड़े थे, हादसा भी रोनमा होते थे। रोही न्यूज़ ने भी मुसलसल खबरें नशर की, जिसके बाद NHA को होश आ गया। अब रोड की मरम्मती का काम शुरू हो गया है। मेरे साथ शमाई शफिया बशीर मन गुजर मौजूद है, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। सर रोई टीवी का बहुत शुक्रिया अदा करूँ, जै खबर लई उनकी शुक्रिया अदा करूँ। बहु फैमिलियां इतना तंग थे, निके निके बच्चे बहु तंग थी, ढाए वे हादसे थी, बहु रोई शुक्रिया अदा करूँ रोई टीवी का। जी बिल्कुल, रोही टीवी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, यहाँ पर लेबर जो है वो लगी हुई है, तो ये आप देख रहे हैं कि भाईजान कहाँ तक बनाएंगे। ये जो है ना राखी गाज से गिरदो तक जो है ये रोड बनाया जाएगा। लेबर जी अली मूसा रजा आप सड़क की तामीर के हवाले से बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे भगर का, जहां मंडी टाउन में सफाई की नाकिस सूरत हाल। मंडी टाउन म्यूनसिपल इंतजामिया की लापरवाही से कूड़ादान में बदल गई है। म्यूनसिपल एहलकार कूड़ा करकट मखसूस जगह पर फेंकने की बजाय पार्क में जमा करने लगे हैं। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं उसामा हैदर से। जी उसामा बताएगा। हर टेक्सटाइल कॉलोनी के ज़रिए तमाम बनाए जाने वाली जो मंडी टाउन में जो है इंतजामिया की जानिब से जगह जगह प्ले ग्राउंड बनाए गए थे ताकि यहाँ के शहरियों को खेल और तफरीह की अच्छी और मियारी सहूलियात जो है मुहैया हो सके। लेकिन बदकिस्मती से जैसे जैसे वक्त गुजरा उसके साथ ही इन पार्कों की जानिब जो है इंतजामिया ने तवज्जो देना खत्म कर दिया। और आप मेरे हुक्म में भी देख सकते हैं कि इस वक्त ये पार्क जो है ये किसी वीराने और खंडर जंगल का मंजर पेश कर रहा है। बच्चों ने यहाँ पे खेलना छोड़ दिया है, तरह तरह के हशरात और अर्ज यहाँ पैदा हो गए हैं, जिस वजह से यहाँ पे जो है किसी भी नुकसान का जो है वो पेश खैमे बन सकता है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि सर ये पार्क की सूरत हाल है, आप यहाँ के रहने वाले हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? इंतजामिया काफी काम तो करा रही है मुख्तलिफ जगहों पे। देखें जी, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने जब से बकर का चार्ज संभाला उन्होंने बहुत सारे पार्क्स पर तवज्जो दी है, उनको रेनोवेट किया है। लेकिन बदकिस्मती से मंडी टाउन का ये प्ले ग्राउंड अब भी ऐसे खंडरात और जंगलात का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पर बच्चे खेलने के लिए नहीं आते। हशरातुल अर्ज की यहाँ पर बहुतात है, सांप बिच्छू काटने का खतरा हर वक्त मौजूद रहता है। तो हमारी यही गुजारिश है DC साहब से कि इस पर तवज्जो दें और इसको दोबारा से जो है ना इसको प्ले ग्राउंड बच्चों के लिए बनाएं ताकि बच्चे आसानी से यहाँ पर अपना वक्त गुजार सकें। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है। सर आप बताइएगा कि आप तो यहाँ के रहने वाले हैं, इंतजामिया वालों ने कभी चक्कर नहीं लगाया जो इतने बड़े बड़े घास हो गए, कूड़े को आग लगी हुई है? नहीं जी, हम लोग कुछ अर्सा पहले तो यहाँ पे खेलते थे, क्रिकेट वगैरह भी, फुटबॉल भी खेलते थे। अब ये हालत है कि आप ये देख रहे हैं कितनी बूटियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ, यहाँ पे सांप बिच्छू का डर रहता है। दूसरा ये है कि ये जो सफाई करते हैं, जो सफाई वाला अमला है, वो जो बाकी एरिया का जो गंदा कूड़ा होता है वो यहाँ पे ला के उसको डंप करके यहाँ पे आग लगा देते हैं। तो इससे बड़ी जो है ना बड़ा अभी आगे डेंगू का मौसम भी आ रहा है। तो अगर डिप्टी कमिश्नर साहब इस पे जरा तवज्जो दे देंगे तो मेरे ख्याल में हो सकता है कि ये मंडी टाउन का जो एरिया है वो डेंगू और इस तरह की मुसीबत से बच सके और दीगर बीमारियों से। मंडी टाउन में सफाई की अबतर सूरत हाल है। उसामा हैदर, बहुत शुक्रिया आपका। अलीपुर से खबर शामिल करें, जहां मोहल्ला फारूकिया के फिल्ट्रेशन प्लांट पर नाकिस इंतजामात, शहरियों को पानी भरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं राना इमरान सईदी से। जी राना इमरान बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहल्ला फारूकिया अलीपुर में। फिल्ट्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पर पानी को लेने के लिए शहरियों की, बच्चों की काफ़ी तादाद मौजूद है और इन्होंने लाइन बनाई हुई है। ये अपनी जो है बारी पर जो है पानी को जो है वो यहाँ से भर रहे हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट के नलों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है 8 जो टैंकियाँ हैं, जो नल हैं वो यहाँ पर नस्ब किए गए थे। लेकिन यहाँ सिर्फ एक जो नल है वो कारआमद है, जिससे जो है शहरी
पानी जो है वो लेके जा रहे हैं। यहाँ पर जो है लाइन में खड़े होकर जो है महल्लेदारों को पानी भरना पड़ता है। फिल्ट्रेशन प्लांट की सफाई की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सफाई का इंतहाई नाक़िस इंतज़ाम है। यहाँ तैनात मुलाजम जो है वो भी कहीं नज़र नहीं आ रहा। जो शहरी हैं इस हवाले से खासे परेशान है। मेरे साथ यहाँ पर पानी लेने के लिए एक शख्स मौजूद है, इनसे जानते हैं। बताइएगा इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अलीपुर का ये साफ पानी का सबसे बड़ा मसला है, लेकिन यहाँ जो फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया गया है, यहाँ 8 टूटियों की जगह है, लेकिन एक टूटी काम कर रही है। पूरे मोहल्लेदार परेशान है। यह आपके सामने सारे पानी भरने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी यहाँ मौजूद नहीं होता और ना साफ पानी है। ये पानी भी खराब है, मोटर चलती रहती है, नीचे भी सारी कीचड़ होती है, सफाई का भी कोई खास निजाम नहीं है। जी, शहरियों का कहना है कि भी यहाँ पर शहरियों को पानी भरने में मुश्किलात का सामना है। राना इमरान सईदी, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानब कोटद्दू की गला मंडी आड़तियों के लिए गैर महफूज है। गला मंडी में डकैती की वारदात, डाकू गुलाम मोहम्मद सन्स के गोदाम के ताले तोड़कर 20 लाख नकदी और जेवरात ले उड़े। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं तैमूर अथर से। जी तैमूर, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटद्दू की गला मंडी, जो ये गला मंडी आड़तियों के लिए गैर महफूज हो चुकी है। यहाँ पे दिन के वक्त एक बड़ी वारदात हुई है। गुज़श्ता रोज छुट्टी का रोज था और सुबह में ही यहाँ पर एक चोर गैंग जिसने तकरीबन 3 दुकानें हैं जिनके ताले तोड़े और एक दुकान जिसमें से लाखों रुपए नकदी और जेवरात ले उड़े हैं। सीसीटीवी फुटेज भी आ गई है और ये एक सवालिया निशान बनता है कि जहां पे करोड़ों रुपए का रोजाना कारोबार होता है और वो गला मंडी गैर महफूज है कि इस तरह की वारदात दिन के अंदर जहां पे किसी आम आदमी की आने की इजाजत भी ना हो और इस तरह की वारदात होगी है। मेरे साथ आड़ती मौजूद है जिनकी वारदात हुई है। सर, मुझे आप बताइएगा किस तरह इतनी बड़ी वारदात होगी है? करोड़ों रुपए का यहाँ पर बिजनेस होता है। गला मंडी इंतजामिया की अपनी भी सिक्योरिटी होती है। कितना नुकसान हुआ है? पुलिस की जानिब से अब तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस वाले कल आए थे, उन्होंने आके अपनी जो कार्रवाई होती है वो की है। उसके बाद कोई फोरेंसिक वाले भी आए थे, उन्होंने भी अपनी कार्रवाई करके चले गए हैं। वो तो जुमेरात वाले दिन हम रात को दुकान बंद करके गए हैं। सुबह तकरीबन हम यहाँ 10 साढ़े 10 बजे आए हैं। हमने कोई काम करना था यहाँ पे अपना, तो उस सिलसिले में आए हैं। तो देखा तो यहाँ ताले चेंज हुए थे। हमने अपने हमारे इसकी चाबियाँ होती हैं बल्लेदारों के पास, उन्हें बुलाया। उन्होंने जो है ना जी ये आके देखे तो उनकी चाबियाँ भी नहीं लगी इन्हें। तो फिर हमने थाने फ़ोन किया, तो थाने ना बल्कि ये हमने ना ये छोटे गेट की चाबी लग गई। इसको खोल के देखा तो ये पेटी हमारी टूटी हुई थी, सारी सेफ अलमारी टूटी पड़ी थी, गिरी पड़ी थी एक साइड पे। तो इसी सिलसिले में फिर हमने 15 पे कॉल की, पुलिस वाले आ गए हैं। उन्होंने आकर जो है ना जी फिर ये ताले शाले तोड़े हैं। फोरेंसिक वाले के तकरीबन 19 साढ़े 19 लाख रुपए जो है ना कैश था। कुछ हमारे जेवरात भी पड़े हुए थे यहाँ पे। तो अपनी कार्रवाई करके पुलिस वाले चले गए। हाँ जी बिल्कुल, 19 लाख रुपए नकदी गला मंडी आड़तियों के लिए गैर महफूज हो गई है। तैमूर अथर, बहुत शुक्रिया आपका। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स पंजाब एहसान भुट्टा की मुल्तान आमद। सेक्रेटरी एहसान भुट्टा की कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर से मुलाकात में डिवीजन में स्पोर्ट्स और सियाहत के फरोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा रोही से। गौहर रहमान, बताएगा इस हवाले से। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब यूथ अफेयर एहसान भुट्टा दौरे मुल्तान पर हैं। उन्होंने कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद से मुलाकात की है। डिवीजन में स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर के हवाले से जो मसाइल हैं उनके ऊपर तबादला ख्याल किया गया है। खुसूसन तौर पर मुल्तान में जो ग्राउंड्स की तज़ीन व आराइश का काम चल रहा है सेक्रेटरी स्पोर्ट्स की जेर निगरानी, उन पर जो है कमिश्नर मुल्तान की तजावीज़ भी पेश की गई हैं। तो हमारे साथ सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब मौजूद हैं। सर, बताइएगा इस दौरे के हवाले से बताइएगा कौन कौन से अमूर पर तबादला ख्याल किया गया? एक तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। देखें, आज मैं आया हूं, मैं 3 चीज़ों के लिए आया हूं बेसिकली। एक तो स्पोर्ट्स की है हमारी डेवलपमेंट की स्कीम्स, एक यूथ अफेयर की जिसमें लाइब्रेरी है उसको देखना है, एक मेरे पास टूरिज्म का भी है सेक्रेटरी का चार्ज। तो मैं आर्कियोलॉजी और टीडीसीपी जो टूरिज्म के हवाले से वो आपके कमिश्नर साहब ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। दमदमा जो आपका मेन जगह है वहाँ पे वो चाह रहे हैं कि उधर कोई टूरिस्ट का रिजॉर्ट बनाया जाए या उनकी रेस्टोरेंट वगैरह बनाया जाए। तो वो मैं इसलिए मैं आया था ताकि टीडीसीपी और आर्कियोलॉजी की 2 साइट्स हैं आपकी श्राइन्स, उन पर वो काम कर रहे हैं तो उनका विजिट करना है। सर, ये बताइएगा, आप सियाहत के हवाले से भी बड़ी दिलचस्पी रखते हैं और स्पोर्ट्स के हवाले से भी खासी दिलचस्पी लेते हैं ज़ाती तौर पर, तो आज की मुलाकात कैसी रही है? इस मुलाकात के बाद मुल्तान में कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें फंडिंग्स के हवाले से थोड़े से मसाइल का सामना था वो हल हो जाएंगे? देखें जी, मैं सबसे पहले एहसान भुट्टा साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ। मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि आप तशरीफ़ लाएँ और हमारी खुशकिस्मती है कि एहसान भुट्टा साहब जैसे
डायनामिक और बड़े एक्टिव किस्म के हमारे सेक्रेटरी हैं यूथ अफेयर स्पोर्ट्स के। एक तो दमदमा का जिक्र कर दिया सेक्रेटरी साहब ने कि वहाँ पर इंशाल्लाह ताला हम टेरेस रेस्टोरेंट जो है वो एक इंटरनेशनल किस्म का हम चाह रहे हैं कि वहाँ पर बन जाए। और हमारा एक हॉकी का स्टेडियम जो है वो हमारी फंडेड स्कीम है, 100 मिलियन उसका रिलीज हो चुका है। उसकी साइट की आइडेंटिफिकेशन इंशाल्लाह ताला 2-4 दिन में हो जाएगी। जी बिल्कुल। मुलाकात में डिवीजन में स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। गौहर रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में सोशल वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट्स कमेटी एक साल बाद भी फाल ना हो सकी। कमेटी फाल ना होने की वजह से ह्यूमन राइट्स कमेटी के मेंबरान भी तैनात नहीं हो सके। मजीद तफसीलात जान लेते हैं सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, सोशल वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन कमेटी एक साल गुजर जाने के बाद भी फॉल नहीं हो सकी है। डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन कमेटी बनाने का मकसद माशरे में इंसानी हकूक़ की पासदारी और इंसानी हकूक़ के हवाले से लोगों को आगाही फराहम करना था, लेकिन अभी तक कमेटी फॉल नहीं हो सकी और डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन कमेटी के जो मेंबरान हैं वो भी तैनात नहीं किए जा सके। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर और डायरेक्टर सोशल वेलफेयर समेत मुख्तलिफ ऑफिसर जो हैं उनको इस कमेटी का मेंबर बनाने के हवाले से तजवीज़ पेश की गई थी, लेकिन ताहाल ना तो कमेटी फॉल हो सकी है, उसके साथ साथ जो सोशल वेलफेयर के कमेटी फॉल नहीं हो सकी और तैनातियां भी ताहाल नहीं हो सकी। सुहेरा तारिक, बहुत शुक्रिया आपका। कमसिन बच्चियों की शादी के मुकदमे में नामजद इश्तिहारी मुलजिम की अबूरी जमानत पर समाअत। अदालत ने पुलिस थाना कैंट से रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। तफसीलात जान लेते हैं माहिर इमरान से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में कम उम्र बच्चियों से शादी करने का मामला है ये, और इस हवाले से जनवरी 2020 में बाकायदा तौर पर 8 नामजद जबकि 40 नामालूम मुलजमान पर ये मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें छोटी बच्चियों के साथ जो शादियां हो रही थी। और उस वक्त जब पुलिस और मीडिया टीम पहुंची थी तो वहां के जो वो लोग थे उन्होंने अटैक भी किया था मीडिया पर, उनके कैमरे भी तोड़े गए थे। और इस हवाले से आज एक मुलजिम ने जो अबूरी जमानतें अदालत में दायर की। अदालती कार्रवाई के हवाले से क्या मामलात चले, यहाँ पे एडवोकेट बिलाल शहबाज साहब और उनकी टीम मौजूद है। अदालती कार्रवाई में आज क्या था, ये मुलजिम का क्या नाम था और इस पे एलिगेशन क्या था? ये जी मुल्जिम मोहम्मद फैसल है। ये 10 महीने पहले ये फ्रॉड था, पीओ हो गया था, प्रोक्लेम ऑफेंडर इश्तिहारी हो गया था। अब इसने अबूरी जमानत दायर की है। उसके लिए उसने कहा जी मैं शामिल तफ्तीश हो गया हूँ, गलत बयानी किया, हालांकि वो ऑन द रिकॉर्ड मिसल में कोई शामिल तफ्तीश नहीं हुआ। जज साहब ने ये डायरेक्शन किया है कि आप शामिल तफ्तीश हों और पुलिस को भी डायरेक्शन की गई है कि ये मुलजिम को शामिल तफ्तीश करें। ये बताइएगा, ये जो अर्ली समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। माहिर इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी डीजे खान के सदर इरफान खोसा कहते हैं कि गुजरांवाला पीडीएम जलसा कामयाब शो रहा। हुकूमत ने महंगाई करके आवाम को बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया है। मुल्तान जलसे की तैयारियां जारी हैं। 30 अक्टूबर को मुल्तान में बेहतरीन जलसा करेंगे। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ मोहसिन उल मुल्क से। जी मोहसिन, बताएगा। पीडीएम ने पहला अपना बड़ा शो गुजरांवाला में दिखा दिया और अब अगली बारी है मुल्तान की भी। और मुल्तान में 30 तारीख को पीडीएम में अपना बड़ा सियासी शो जो है वो करने जा रही है, जिसमें ऑब्वियसली डेरन गाजी खान से भी काफले और यहाँ से रहनुमा भी शिरकत करेंगे। हमारे साथ सरदार इरफान खोसा साहब मौजूद हैं, जो कि सदर हैं, जिले सदर हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी के डेरा गाजी खान से। सरदार साहब, क्या समझते हैं, इन धरनों से कुछ होने वाला है? आप जा रहे हैं मुल्तान? जी मोहसिन सिंह, आपने ये जो पीडीएम का जलसा हुआ है आज, वो तो आपने देख लिया है, आवाम का मोमेंटम भी देख लिया है। इसमें अपोजिशन का तो इतना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैं इनको मौजूद प्राइम मिनिस्टर को कमजोर तरीन प्राइम मिनिस्टर देख रहा हूं, तो ये तो अपना गोल अचीव करेंगे। तो यानी कि अपोजिशन ने इतनी मेहनत नहीं की है, लोग खुद बाहर निकले? जी बेशक, लोग खुद इस महंगाई की वजह से, लॉलेसनेस की वजह से लोग खुद आ रहे हैं। जाहिर है इधर कॉल भी जयद लोगों की दी हुई है, वो भी तो जाहिर है, उनको भी तो वो कंसीडर करेंगे। तो आगे क्या देख रहे हैं? 30 तारीख को आप बड़ा सियासी शो देख रहे हैं? बिल्कुल, कामयाब तरीन होगा वो इंशाल्लाह। तो जनूबी पंजाब के अवाम भी इस वक्त, जनूबी पंजाब की अवाम इंशाल्लाह वहाँ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी महंगाई अफेक्ट कर रही है? बेशक बेशक, बहुत बड़ा इशू है, मेन इशू है पब्लिक का महंगाई। हुकूमत को क्या होगा इससे, धरनों से? जी मैं ये नहीं कह सकता हूँ,
یہ تو پھر جو دو چار جی ہاں ٹائم بتائے گا. ٹھیک ہے جی. سردار عرفان کھوسہ صاحب کہہ رہے ان ہیں کو کہ ملتان میں کامیاب جلسے کی تیاریاں جاری ہیں. بیورو چیف محسن ملک آپ تفصیلات بتا رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں پنجاب بار کونسل کے انتخابات کی کیمپین کے لیے امیدواران سرگرم ہیں. پنجاب بار کونسل کی بہاولپور کی 3 نشستیں ہیں جن کے لیے متعدد امیدوار حصہ لے رہے ہیں. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمود ظہیر سے. جی محمود بتائیے گا. بار کونسل کے انتخابات کے حوالے سے سرگرمیاں جاری ہیں. 28 نومبر کو گو کہ یہ الیکشن ہونا ہے, لیکن امیدواران جو ہیں وہ چیمبر ٹو چیمبر جا رہے ہیں اور وکلاء سے اپنے ووٹ کی استدعا کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک خاتون امیدوار ہیں سمینہ قریشی صاحبہ, وہ چیمبر ٹو چیمبر جا کے اپنے لیے ووٹ مانگ رہی ہیں. میم کیا دیکھ رہی ہیں اپنی جیت کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس وقت الیکشن کیمپین بھی میں ہوں. بہاولپور سیٹ سے پنجاب بار کونسل کا الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہوں. اس سے پہلے میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار بھی رہی ہوں اور ممبر ایگزیکٹو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن رہی ہوں. اور اس میں صرف ایک عزم کے ساتھ آئی ہوں کہ ہم نے اپنے لائرز کی ویلفیئر کے لیے, اپنی بارز کی بیٹرمنٹ کے لیے جتنا ہو سکے گا ہم نے لیجسلیشن کے لیے وہاں آواز اٹھانی ہے. اور لا کے لیے ایسی لیجسلیشن کے لیے ہم لوگ کوشش کریں گے جس سے بہاولپور ڈویژن کی اسپیشلی جو ہے زیادہ سے زیادہ ہمیں وہاں سہولیت حاصل ہو سکیں. اور اس کے علاوہ میں یہ نہیں کہتی کہ میں صرف بہاولپور کی سیٹ سے لڑیں تو صرف بہاولپور کے لیے کام کروں گی. میرا عزم ہے کہ میں نے پورے بہاولپور ڈویژن سے بغیر دیکھے رحیم یارہا ہے, بہاول نگر ہے, ہم نے کلیکٹیولی پوری بار کے لیے پورے ڈویژن کے لیے کام کرنا ہے. ڈویژن کے لیے کام کرنا ہے تو جن کے لیے کام کرنا ہے. امیدواران سرگرم ہیں. محمود ظہیر بہت شکریہ آپ کا. بہاولپور سے ہی آپ کو اپڈیٹ کریں گے. محکمہ لیبر ویلفیئر کی ملازمین کو کم اجرت دینے والوں کے خلاف کارروائی. ڈائریکٹر لیبر ویلفیئر کی دکانوں اور بھٹا جات کی باقاعدہ انسپیکشن میں کم تنخواہ دینے پر 65 بھٹوں اور دکان مالکان کو چالان کر دیا گیا ہے. تو آپ کو بتا رہے ہیں بہاولپور میں محکمہ لیبر ویلفیئر کی ملازمین کو کم اجرت دینے والوں کے خلاف کارروائی سامنے آئی ہے. ڈائریکٹر لیبر ویلفیئر کی دکانوں اور بھٹا جات کی باقاعدہ انسپیکشن کی گئی ہے. ملتان میں پیپلز لائرز فورم کے زیر اہتمام سانحہ کارساز کی یاد میں تقریب. ڈسٹرکٹ بار ہال میں وکلاء نے سانحہ کارساز کے شہداء کی یاد میں شمع روشن کی. اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے عمران سے. جی عمران بتائیے گا. جی بالکل, سانحہ کارساز کو پاکستان کی ملکی تاریخ کے سیاہ دن کے طور پر جو ہے یاد رکھا جاتا ہے. اور اسی حوالے سے یہاں پہ ڈسٹرکٹ بار میں وکلاء نے سانحہ کارساز کے شہداء کے لیے یہاں پہ شمع روشن کی اور خصوصی دعا کا اہتمام کیا گیا. وکلاء عہدیداران PLF کے وہاں پہ موجود ہیں. شیخ غیاث الحق صاحب سے جانیں گے. سر بتائیے گا سب سے پہلے آج کے اس دن کے حوالے سے کیا کہ آج ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکن, پاکستان پیپلز پارٹی بلکہ پاکستان کا ہر شہری آج ہم غمگین ہیں اور اس واقعے کو یاد کر رہے ہیں کہ جب دہشت گردی کی انتہا ہوئی کہ ہمارا ایک پرامن قافلہ جس کی قیادت محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ فرما رہی تھی, دہشت گردوں نے اس کا نشانہ بنایا اور ہمارے بے گناہ ساتھی تقریباً 150 کے قریب وہاں پہ شہید ہو گئے. آج ہم شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہیں اور ہم نے دعائیہ تقریب رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے شہداء کی جو مرتبے ہے بلند کرے اور ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر و جمیل عطا کرے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی واحد جماعت ہے جو اس ملک کو اندرونی بیرونی خلفشار سے نکال سکتی ہے. مہنگائی کا جس انداز میں اس حکومت نے انتہا کر دی ہے کہ 25 چیزیں جو ضروریات زندگی جس میں آج انڈا 25 روپے کا بک رہا ہے, آلو, ٹماٹر, دالیں, گھی, سبزی, ہر چیز گویا کہ ان لوگوں کی رینج سے باہر نکل گئی ہے. چینی کا اعلان 80 روپے کا کرتے ہیں لیکن 120 روپے بھی نایاب ہے. گھی کا اسی طرح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے آج عوام بلاول بھٹو کے پیچھے, PDM کے پیچھے سب کھڑے ہو گئے ہیں. سانحہ کارساز کی یاد میں شمع روشن کی گئی ہیں. ماہر عمران بہت شکریہ آپ کا. بھی رخ کریں گے خانیوال کا, جہاں آل پنجاب گورنمنٹ ڈرائیورز ایسوسی ایشن کی پریس کانفرنس. ایپکا ملازمین اور گورنمنٹ ڈرائیورز ایسوسی ایشن کا اپنے مطالبات کے حق میں دھرنا دینے کا اعلان. تفصیلات جان لیتے ہیں ندیم مغل سے. جی ندیم بتائے گا. ڈرائیور ایسوسی ایشن کا کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے خانیوال میں, جس میں مرکزی قائدین نے بھی شرکت کی ہے. تو ہمارے رانا منیر صاحب موجود ہیں, ان سے ہم جان لیتے ہیں آج کی کانفرنس کے حوالے سے. جی آل پنجاب ڈرائیورز ایسوسیشن کانفرنس منعقد ہوئی ہے, اس کانفرنس کے مقاصد کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن آل پنجاب مرکزی قیادت کی
हुक्म को मद्देनज़र रखते हुए आज तमाम अजला में एक कॉर्नर मीटिंग या इसको आप समझ लें सुप्रीम काउंसिल जनरल का इजलास हो रहा है। इसके हम मज़ीद अगले जो अलाया अमल है वो तैयार करना चाहते हैं। 10 तारीख को 10 नवंबर को हमारा एक जलसा होगा, बल्कि रैली होगी इस्लामाबाद लाहौर में, और पार्लियामेंट हाउस के सामने हमारा एहतजाज होगा। उससे पहले 29 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को हमारे अपने अपने दफातर में तालाबंदी होगी, और उसकी तमाम जो है ना इसमें आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के साथ तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जितने भी हैं वो उनके साथ हमारा अलाक़ हो चुका है, और ये इस वक्त टीचिंग और नॉन टीचिंग इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आज जो देख रहे हैं दोस्तों की भरपूर शिरकत है, इसी तरह इंशाल्लाह आइंदा भी होगी। जी बिल्कुल, आज मुतालिबात के हक में धरना देने का ऐलान किया है नदीम मुगल, बहुत शुक्रिया आपका। चिफ आसिम सिद्दीक, बहुत शुक्रिया आपका।